hide under the shadow of the Almighty. And it says, I will say of the Lord, He is my refuge, my fortress, my God. In Him I will trust. Praise God. Sister Nisi, if you can read in Hindi, या please. हम पढ़ेंगे 91 उसके पहले अध्याय के अध्याय को हम देखेंगे, पहले अध्याय के एक और दूसरे आयतों को। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। Amen. Can you say this? He is my refuge and my fortress, my God. In Him I will trust. Hallelujah. Can you open your mouth and make a declaration that He is the God, He is my refuge, He is my fortress, my God. In Him I will trust. Praise God. क्या आप Hallelujah. लोग अपने होठों को खोलकर ये वचनों को कह सकते हैं कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। अपने होठ को खोलकर इन वचनों को विश्वास के साथ कहना है। Because there is no safety in this world. Whether you have money or you have influence, there is no safety in this world. But we got safety and we got security, we got hope and we got trust in the name of our Lord and our Savior Jesus Christ. And now if you can lift up your hands and just praise His name, because His name is above every other name. Hallelujah. और इस दुनिया में जो है कोई भी संरक्षण या फिर कोई भरोसा या आशा की बातें नहीं है, लेकिन केवल परमेश्वर यीशु मसीह पर हम भरोसा कर सकते हैं, आशा रख सकते हैं। तो इस समय हम क्या अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर के उस महान नाम को धन्यवाद दे सकते हैं। आमीन। Oh, you must be coming through. You must have come to this meeting with a heavy heart, but I want to release the peace of God, the peace that surpasses every understanding to God, and to cover your hearts as we are going to pray this evening time. Hallelujah. और आप शायद से बड़े बोझ के साथ, बोझ वाले हृदय के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आए होंगे, लेकिन परमेश्वर का उस शांति को मैं आपके जीवन में प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर का शांति आपके जीवन में छा जाए और आप एक बदलाव को महसूस कर पाए। And as you open your mouth and say that He is my refuge and my fortress, hallelujah, because there is none like Him who can save me, who can keep me in His protection. Will you open your mouth? I want to ask the people of God to take an act of faith, to open your mouth and make declarations as we are going to pray. Hallelujah. That tell about who your God is. Praise God. Hallelujah. और जिसे वचन कहता है वो मेरा शरण स्थान है और वो मेरा गढ़ है। जब हम विश्वास के साथ इस बातों को कहते हैं कि आपको जो है विश्वास के साथ बातों को आपको बोलना भी है, और साथ में हम जो है विश्वास को इस समय अपने जीवन में लागू करेंगे। और परमेश्वर के लोग, आप जो कोई लोग मुझे सुन रहे हैं, हम साथ में इन वचनों को मनन करके हम घोषणा करेंगे। The Lord is doing some miracles for some people right now as we are praying and we're bringing our petitions before God this evening time. He's a miracle working God. There is nothing impossible with our God. Hallelujah. और इस समय जो लोग आज मेरे वचन को सुन रहे हैं, आप अभी परमेश्वर उनके हृदय में, कुछ लोगों के हृदय में, उनके जीवनों में परमेश्वर अद्भुत कार्य कर रहे हैं, और आज एक छुटकारा का दिन है। Will you lift up your hands to God as we start to pray together? Hallelujah. क्या अपने हाथों को उठा सकते हैं जब हम प्रार्थना साथ में करेंगे? Let us lift up our voices towards our God, who is our refuge, our strength, our God, and Him we will trust. Hallelujah. हम अपने आवाज को परमेश्वर की और जो हमारे शरणस्थान, जो हमारा गढ़ है, जो हमारा परमेश्वर है, जिस पर हम भरोसा रखते हैं, उनकी ओर हम उठाएंगे। There is no one like our God who does miracles so great. There is no one like our God who can move the mountains for us. Hallelujah. और हमारे परमेश्वर के समान और कोई नहीं है जो अद्भुत कार्य कर सकता है, और हमारा परमेश्वर ही जो पर्वतों को हटा सकते हैं। Who do we have on the earth but you, O God? Who do we have in the heaven but you, O Lord? Hallelujah. परमेश्वर पृथ्वी पर हमारा कौन है? केवल आप ही है। और स्वर्ग में कौन है? केवल आप ही है हमारे लिए। So let us look unto His face and let us seek the Lord for His grace and for His petition for His mercy and petition for His deliverance and petition for His healing upon the land. Praise God. तो हम Hallelujah. परमेश्वर के मुंह को हम ताकेंगे और उनसे विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर का करुणा हमारे इस देश पर, हमारे इस जमीन पर, परमेश्वर का चंगाई हमारे जमीन पर उतर आए।
I want to request the people of God, if you have got hatred against somebody, forgive them, release that hatred, because that stays against your prayers to be answered. Praise God. और अभी मैं कहना चाहता हूँ, कुछ लोग यदि आपके हृदय में कुछ कड़वापन है किसी के प्रति आपके जीवन में द्वेष है, तो आप उसको निकालना है, क्षमा करना है, क्योंकि यदि आप अपने जीवन में इस पाप को बनाए रखेंगे तो आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। Because Satan uses that to stop your prayers from being answered today. So release out. If you have somebody has hurt you by saying something or done something against you, just forgive them and say, Lord, give me the grace to forgive, and bless them in Jesus' name as we are praying with this time. Hallelujah. क्योंकि शैतान जो है उस पाप को आपके हृदय में, आपकी प्रार्थनाओं को, आपके आशीष को रोकने की वस्तु के समान इस्तेमाल करेगा। तो यदि आपके हृदय में कड़वापन या कोई द्वेष है किसी के प्रति, या किसी ने आपके प्रति बुरा कार्य किया है जिससे आपको ठेस पहुंचा है, तो आपको उनको क्षमा करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, उनको आशीष करना है और उस पाप से छुटकारा पाना है। So let us pray. Father, we come to you in the name of your Son Jesus and with the help of the Holy Spirit, Lord. पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी उपस्थिति में आते हैं। Lord, you're a miracle working God. That's what your word says. You're a faithful God who does not change his word. Hallelujah. परमेश्वर आप अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, और जिससे आपका वचन कहता है कि आप अटल है, आप बदलने वाले नहीं है, आप विश्वास योग्य है। Lord, you are a refuge and you are a fortress. You are a God, and I will trust in you, O God. Hallelujah. परमेश्वर आप हमारा शरणस्थान है, आप हमारा गढ़ है, और आप हमारा परमेश्वर है, और आप पर हम भरोसा करते हैं परमेश्वर। There is no one else for you for us to trust but you alone, O God, and we come to you this evening time trusting upon your word and upon your promises, O God. Hallelujah. परमेश्वर हमारे पास और कोई नहीं है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, और इस संध्या समय हम जो आपके ऊपर भरोसा रखकर, आपके वचनों के ऊपर भरोसा रखकर आपकी उपस्थिति में आए हैं। There is calamity in the world, but there is peace in your presence, O God, and we come to seek that peace from your presence, O God. Hallelujah. परमेश्वर दुनिया में जो है महामारी है, लेकिन आपकी उपस्थिति में हम शांति को प्राप्त करते हैं, इसके लिए हम आपकी उपस्थिति में बैठे हुए हैं। There is sickness around in the world, but there is healing in your presence, O God. Hallelujah. दुनिया में जो है रोग की अवस्था है, महामारी की अवस्था है, लेकिन आपकी उपस्थिति में चंगाई है। There is Lord, the challenges in the world, but there is solutions in your presence, O God. Hallelujah. परमेश्वर दुनिया में चुनौतियां तो भरी हुई है, लेकिन आपकी उस उपस्थिति में हम उसके जवाबों को प्राप्त करते हैं। According to your word, we cast all our burdens into your feet, and today grant us your peace, O Lord, we pray. और आपके वचन के अनुसार हम सारे चिंताओं को, व्याकुलता को आपकी उपस्थिति में रख देते हैं, आपके हाथों में दे देते हैं, और आपके समाधान को हमारे जीवन में प्रदान कीजिए। Let your miracle working power to be manifested through our lives, Lord, we pray. आपका अद्भुत कार्य जो है, आप कार्य का सामर्थ्य जो हमारे जीवन में कार्य करे, इस प्रकार से दुआ हम करते हैं। Lord, we thank you for the air that we are able to breathe freely. We give you praise to your name, O God. Hallelujah. परमेश्वर जो वायु हम बिना कोई कीमत के जो हम वायु को हम अंदर लेते हैं, प्रभु श्वास लेते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। We thank you for our hands that move, our lips that are able to speak, our legs that are able to stand and to worship you, Lord. We give you praise to your name. Hallelujah. परमेश्वर आपने हमारे हाथों को बल दिया, आपने अपने हमारे पैरों को बल दिया, शरीर में बल दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। And today we pray for healing of India, Lord. और आज हम भारत की छुटकारा, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। We pray for the healing in the land, oh Lord, we pray. Hallelujah. परमेश्वर हमारी जमीन में एक चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Oh, we pray that you will, Lord, take away the plague from our land, oh Lord, we pray. Hallelujah. परमेश्वर हमारी जमीन से उस महामारी को आप दूर कीजिए, ऐसे हम दुआ करते हैं। Oh, save the poor people, we pray, oh God, we pray. और Hallelujah. गरीब लोगों को आप बचाइए, ऐसे हम दुआ करते हैं। We pray for the doctors and the nurses and the police and all who are working towards to bring this calamity to a stop. Strengthen them, Lord, we pray. Hallelujah. हमारे डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, पुलिस लोगों के लिए और सारे लोग जो पीछे कार्य करते हैं, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको बल दीजिए। We pray for Narendra Modi, our Prime Minister. Bless him, we pray, Lord. Give him the grace to do what is the right thing, oh God, we pray. और हमारे प्रधानमंत्री के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनको कृपा दीजिए ताकि वो सही बातों को हमारे लिए कर पाए। We pray for our chief ministers, our mayors, Lord, our police commissioners, Lord, our judges, that they will rule righteously according to your word, we pray, Lord. Let there be righteousness in the land, oh God, we pray. हमारे सारे मुख्यमंत्रियों को, हमारे नेताओं को, हम सारे न्यायों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं ताकि वो सही कदम उठाकर इस देश के लिए कार्य कर पाए।
And today we pray for everyone who has gathered, who has come with a heavy heart, Lord. Fill them with your peace and let there be answers from your presence for this crisis, oh Lord, we pray. और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज जो लोग इस बोझ के साथ आए हुए हैं प्रभु आप उनको समाधान प्रदान कीजिए. And Lord, as we continue this meeting, let your presence to lead us on and let your presence to be mightily felt here, Lord. I pray for Sister Sabina, who is also speaking your word. Strengthen her to speak your word, we pray, Master. और परमेश्वर अभी जो हम आगे परमेश्वर के वचन को सुनने वाले हैं परमेश्वर आपका उपस्थिति हमारे बीच में कायम बने रहे इसलिए हम इससे प्रार्थना करते हैं और सिस्टर सबीना के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे बीच में वचन से बांटने वाली है. In Jesus' name we pray, amen. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन. Amen. Let the peace of God to fill your hearts. Amen. There is परमेश्वर का शांति जो है आपके हृदय में वास करने पाए. You can face any storm in your life if you got the peace from God. Hallelujah. आप जो आपके जीवन में कोई भी तूफानों का सामना कर सकते हैं यदि आपके हृदय में परमेश्वर का वो शांति है तो. Amen. I once again thank and praise God for this meeting. Thank you, Daddy and Mommy, for organizing this, and also all of us and Sister Nisi and Brother Daniel for coming and supporting the ministry also. Thank you very much. और हमारे साथ जो भी जुड़े हुए हैं उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं. माता पिता के लिए धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस मीटिंग को आयोजन किया है और वर्शिप टीम को भी धन्यवाद देते हैं. परमेश्वर आप सभी को आशीष करे. I want to thank all of you who have joined this meeting with great expectation to hear God's word and to be strengthened by God's word. I pray that the Lord will speak to your heart and his word will enlighten you. Praise God. Hallelujah. और जो लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ. आज परमेश्वर आप सभी से बातें करें और परमेश्वर का वो प्रकाशन आपके जीवनों में बना रहे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं. I pray that you will be strengthened by the power of God's word, that you may know the power that resides in the word of God. Hallelujah. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर के वचन में जो सामर्थ्य है वो आप समझ पाए और वो सामर्थ्य आपके जीवन में अनुभव कर पाए. Amen. Today I will not be able to continue for a long time because, as many of you know, that we are moving from the city where we are going to a new city, and within 5 minutes our people are coming to take away all the things from our house. So please bear with me. और मैं आज ज्यादा समय आपके साथ बिता नहीं पाऊंगा क्योंकि जैसे आप जानते हैं हम इस शहर से दूसरे शहर में हम जाने वाले हैं और 5 मिनट में ही कुछ लोग जो लोग हैं हमारे घर के सामान को दूसरी जगह में बदलने के लिए लेके जाने के लिए आने वाले हैं. तो आप थोड़े समय के लिए मेरे साथ सहन करना है. God willing, next week this time we will be in a new city called New York, and I will of course bring the word of God to you from New York next week. और यदि परमेश्वर का इच्छा है तो अगले हफ्ते एक नए शहर से न्यूयॉर्क इस सिटी से मैं आपको परमेश्वर का वचन बांटने चाहता हूँ. But I have great joy to have Sister Sabina Fernando in our midst today. और मैं बहुत आनंदित हूँ जो आज सिस्टर सबीना फर्नांडो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. And I want to introduce this blessed woman of God. और ये जो परमेश्वर का दासी है उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ. She is a part of our church in Australia. हमारे ऑस्ट्रेलिया का जो कलीसिया का एक भाग ही है ये. She and her husband Roshan, together with the 2 children, Jessica and Jaden, are very active members of our church in Australia. उनके पति रोशन और उनके जो 2 बच्चे हैं वो हमारे कलीसिया के बहुत ही अच्छे विश्वासी है, सदस्य हैं. Sabina is a very active speaker and she speaks in a lot of conferences, and she also leads our ladies ministry in the church. और सबीना जो है बहुत ही अच्छा एक प्रचारक है और वो अलग-अलग जगह में प्रचार करती है और लेडीज मीटिंग जो है हमारे कलीसिया के लेडीज मीटिंग को भी का भी नेतृत्व वो ही करती है. She's also, and she and her husband are both electrical engineers, and they work for the state electricity department back in Australia. और वो और उनके पति जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स है तो उस देश के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जो वो कार्य करते हैं, काम करते हैं. And she's got a rich Christian heritage. Her father and mother have deposited a great Christian heritage into their lives. और उनके जीवन में हम देख सकते हैं उनके माता पिताओं ने मसीह जो ज्ञान है, मसीह का जो धन है उनके जीवन में निक्षेप किया है. Both her parents are with the Lord now, but in her father, Pastor Sam Jebudurai,
he has written over 800 books. I've not heard of somebody who has written over 800 books. His father has written 800 Christian books. And so she comes from that lineage and from that great blessed deposit which these parents have placed upon this wonderful lady and this family. और उनके दोनों माता और पिता दोनों जो है अभी परमेश्वर के साथ है, लेकिन उन्होंने पीछे परमेश्वर के लोगों के लिए और उनके बच्चों के लिए बहुत बड़ा धन को छोड़ के गया है। और उनके पिताजी जो है लगभग 800 पुस्तकों को, मसीही पुस्तकों को लिखे हुए हैं। और मैंने कभी भी इतने ज्यादा संख्या में जो पुस्तकों को लिखा गया है ऐसे मैंने सुना नहीं है। तो इतने बड़े अच्छे घराने से सिस्टर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। And she continues also to write a daily devotion, just like I do write. She also is writing. And we are so, Sabina, we're just so excited to have you. And I pray that the Lord will, can you all put our hands together just to welcome her? And I want to open the microphone to her that she will speak God's word to us. Let's be with great expectation. Over to you, Sabina. और वो हर दिन जो है वचनों को लिखती है, जैसा मैं भी वचन को लिखते हैं, मॉर्निंग डिवोशन को लिखता हूँ। और आज हम उनसे सुनने के लिए बहुत ही प्रतीक्षा के साथ बैठे हुए हैं और हम सिस्टर की ओर हम जाएंगे। Praise the Lord, Pastor. Praise the Lord, Church. It's a great joy to be in your midst this evening time. और जय मसीह की। कलीसिया को भी मेरा प्रेमी सलाम। और आप सभी के साथ जुड़ने के लिए मैं बहुत ही आनंदित हूँ। Thank you, Pastor, for your kind words of introduction. It's a true joy to be part of Pastor Reggie's church, Empowered Nations Church in Perth. It has been a great blessing for me, my husband, and my 2 kids. And we've truly grown through this church. And I really thank God for bringing Pastor Reggie and Pastor Sheba back to Perth and using them to establish the kingdom of God in the city. और पास्टर रेजी और उनके परिवार के साथ सेवकाई करने का जो मौका परमेश्वर ने हमको दिया है, इससे मैं बहुत ही आनंदित हूँ। और उन्होंने बहुत ही अच्छा एक कलीसिया का स्थापना हमारे इस शहर में किया है और पर्थ में जो किया है, और उनके परिवार ने जो कार्य किया है, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। It's also very nice to see Daddy and Mommy here for a long time after seeing them in Perth. God bless you and Auntie, Mommy and Daddy, that the Lord has given you good health and using you, continuing to use you in the ministry mightily. और डैडी और मम्मी जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, उनको भी देखने के लिए आज परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर आपको और भी बहुत सा इससे इस्तेमाल करे। Okay, so let's all bow down our heads in prayer and let's go to the Word of God. हम अपने सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे और वचन की ओर जाएंगे। I just want to share the burden of God this evening time with you. Let's pray. हम परमेश्वर का जो बोझ है वचन के प्रति, उसके बारे में बताना चाहता हूँ और हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। Loving and gracious Heavenly Father, we thank you for this evening time, O Lord. हमारा प्यारा पिता परमेश्वर, इस संध्या समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Lord, you're a God who is for the near and for the far. You're a spirit who fills the whole earth. परमेश्वर आप हमारे साथ है और जो पास है, जो दूर भी है, और आपका आत्मा जो है पूरे धरती के ऊपर वास करता है। We submit our hearts, our minds to your presence now, and we yield ourselves to hear from you, Lord. अब अपने आप को आपके सामने समर्पित करते हैं और आपके सामने हम आपसे सुनने के लिए हम बैठे हुए हैं। Strengthen our hearts this evening, that which is feeble, that which is weak, oh Lord. I pray that your spirit will bring to life. अब हमारे हृदय को आप बलवंत कीजिए और जो बलहीनता की अवस्था है उसको आप हटाकर बल से भर दीजिए। Every discouragement, every pain, every sadness, every sense of helplessness will be taken away in the presence of God this evening time. सारा निरुत्साह की अवस्था, सारा बलहीनता है, सारे निराशा, व्याकुलता को यीशु मसीह के नाम से इस मीटिंग के द्वारा आप निकालने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। For you are the mighty one of Israel who is in our midst. और आप इस्राएल का जो परमेश्वर आज हमारे बीच में है। You are the same yesterday, today, and forever, and you change not, Lord. और आप कल, आज और आने वाले कल में आप बिना बदलने वाला स्थिर परमेश्वर है। That which is committed into your hands, you will hold firm until the last day. और जिन बातों को आपके हाथों में दिया गया है, वो आप अंतिम दिनों तक पकड़े रहने वाले हैं।
Our lives, our families' lives, our ministries, everything is in your hand. हमारा परिवार, हमारे जीवन, हम सेवकाई सब कुछ आपके हाथों में है। I know, Lord, you will protect it until the very end. और मैं विश्वास करती हूँ कि आप उसको अंतिम समय तक संभाले रखेंगे। Yes, Lord, I pray that you will strengthen your people this evening time. और हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने बच्चों को इस शाम के समय में बलवंत करेंगे। In Jesus' mighty name, amen. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Hallelujah. So this evening, when Pastor asked me to share the word of God, I was just waiting on the Lord to see what the Lord has to say. The Lord wants to strengthen his people this evening. He just wants to say that he is with you, and he will protect you, and he will be your shield, and he'll be your buckler. और जब भी परमेश्वर के दास ने मुझे आज वचन से बांटने के लिए कहा था, तो मैं इस वचन की ओर मनन करने लगी और परमेश्वर ने मुझे बताया कि किस प्रकार परमेश्वर हमारे साथ है, जो हमको बलवंत करने वाला है, वो हमारा गढ़ है, हमारे साथ सदैव बना रहते हैं। The Lord wants us to discern the times and act accordingly. और परमेश्वर चाहते हैं कि हम समय को ठीक तरह से परखें और उसके अनुसार हम चले। In the book of Daniel, Daniel says that God appoints times and seasons. और दानियल के पुस्तक में दानियल कहता है कि परमेश्वर जो है समय को और मौसम को परमेश्वर ही ठहराता है। So it's very important for us to understand the time and the season that we are passing through in this life. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इस समय को और जो मौसम से हम गुजर रहे हैं उसको समझें। That's what Jesus said in Matthew chapter 16 verse 3. He says, in the morning it will be stormy today, for the sky is red and threatening. You know how to interpret weather, but do you not know how to interpret the signs of the times? इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 13वां आयत में यीशु मसीह कहते हैं, और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी, क्योंकि आकाश लाल है और धूमिल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसके भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते? We are going through a time and a season in this world where we can see the end time prophecy starting to fulfill. और हम ऐसे एक समय में ऐसे एक अवस्था से गुजर रहे हैं जिसमें हम अंतिम समय के जो भविष्यवाणियों का पूर्तिकरण को देख पाते हैं। Jesus says, when you see all these things, lift up your head, for you know your redemption draws near. और यीशु मसीह कहते हैं, जब भी आप ये सब बातों को देखते हैं तो अपने आंखों को उठा दीजिए, क्योंकि आपका जो छुटकारा है वो समीप है। When in the last few days, our hearts have been so burdened when we hear about the things that's going on in India, and we've been praying for it. और पिछले दिनों में जो बातों को सुनकर, इंडिया में जो भी बातें हो रही है, उस बातों को सुनकर हमारे हृदय में बहुत बड़ा बोझ था और हम लगातार इंडिया के लिए प्रार्थना कर रहे थे। But the Church of God remains strong, and the Church of God will be supported through this, because the mighty one of Israel is with us. और लेकिन परमेश्वर का जो कलीसिया है, परमेश्वर के जो लोग हैं, वो बलवंत खड़ा रहेंगे, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर हमारे साथ है। So when an ordinary woman or man, when he accepts or makes a decision for Jesus, there is a huge spiritual shift that happens in an unimaginable way. लेकिन क्योंकि जब भी परमेश्वर साधारण मनुष्य जो परमेश्वर के लिए खड़ा रहेंगे, तभी असामान्य बातें जो है उनके द्वारा परमेश्वर करेंगे। There is such a huge shift that you and I have no idea that what happens in the spiritual realm. क्योंकि ऐसे बहुत सारे बातें हैं, ऐसे बहुत सारे बदलाव है जो हमारे आत्मिक दशा में हो जाती है, जिसके बारे में हम कभी-कभी समझ नहीं पाते हैं। When a person is about to accept Christ, there are so many eyes that is looking upon that person. When I say eyes, it's not about pastor's eyes or congregation eyes or family's eyes, but the eyes of the millions of angels and the kingdom of God, and the eyes of those of the enemy. और जब भी कोई व्यक्ति परमेश्वर यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं, तभी अनेक आंखें जो है उनके ऊपर लगी रहती है। आंखों का मतलब ये नहीं कि हमारे पासवानों का आंख या हमारे कलीसिया के सदस्यों का आंखें, लेकिन जो है अनेक दूतों का जो नजर है हमारे ऊपर पड़ी रहती है, लगा रहता है,
और जो है शत्रु की आंखें भी हमारे ऊपर लगी रहती है। But the minute a believer accepts Jesus into their heart, लेकिन जब भी परमेश्वर यीशु मसीह को हम जिस क्षण में हम ग्रहण कर लेते हैं, there is a big transaction that happens in the heavenly places in the spiritual realm. और एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा लेन देन स्वर्गीय स्थानों में होती है। A person gets transformed from the kingdom of darkness into the kingdom of light. और व्यक्ति जो है अंधकार के राज्य से परमेश्वर के राज्य में उसका बदलाव हो जाता है। That is what we read in Colossians chapter 1 verse 13. वो ही हम कुलुस्सी उसका 1 का 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं। When you move from the kingdom of darkness into the kingdom of light, you come as not as a slave, but you come as a child. और जब भी आप अंधकार के राज्य से परमेश्वर के राज्य में आते हैं, तभी आप एक गुलाम के समान नहीं, लेकिन एक बालक के समान आते हो। Ephesians chapter 1 verse 5 says that you are adopted into the family of God and you've been given the Spirit of God to call him Abba Father. और इफिसियंस का 1 का 5वां अध्याय इस प्रकार कहता है कि आप जो है परमेश्वर ने आपको गोद ले लिया है और आपको लेपालक पुत्र के समान है, और आप जो है उसको अब्बा पिता के समान आप बुला सकते हो। Once you become a child, you become a heir in the kingdom of God, heir, the son, and you start to inherit all the property, the wealth, the riches, and the privileges in the kingdom of God. जब भी आप उस बेटा या उस संतान बन जाते हैं, तभी आप जो है वारिस भी बन जाते हैं, और उस देश का जो भी बातें, जो भी धन है, उस बातों का वारिस आप भी ठहर जाते हो। And then God writes down your name in the book of life. फिर परमेश्वर आपके नाम को उस जीवन के पुस्तक में लिख लेते हैं। Then God gives you all authority, his own authority. He gives you in the name of Jesus, so you can accomplish things that Christ could do on the earth. और आप जो है परमेश्वर आपके ऊपर वो सामर्थ्य देते हैं, परमेश्वर जो है आपके ऊपर एक योजना को रखते हैं, जो बातें परमेश्वर करना चाहता है वो आपके द्वारा परमेश्वर धरती पे करते हैं। God gives you authority over nature, authority over Satan, authority over the evil one. परमेश्वर आपको इस हमारे आसपास वातावरण के ऊपर, शैतान के ऊपर और हमारे शत्रुओं के ऊपर जो अधिकार है वो हमको परमेश्वर दे देते हैं। Now you've been given angels who are assistants for you, who will go at your command. और स्वर्गदूत जो है अभी आपके साथ है, और वो उसके ऊपर आप जो जब भी आज्ञा देते हैं, वो आपकी आज्ञा के अनुसार वो कार्य करते हैं। Most of the believers don't understand this the minute they are born again, that all this paperwork, all these transactions happen from the kingdom of darkness into the kingdom of light. और बहुत सारे परमेश्वर के लोग जो है इस बातों को समझ नहीं पाते हैं कि जब भी हम अंधकार के राज्य से ज्योति के राज्य में जब हम प्रवेश करते हैं, तभी ये सारा जो लेन देन की बातें हैं, ये सारा पेपर वर्क जो है सब कुछ हो चुका है। But one thing we have to realize is, even though we have been transformed into the kingdom of light, yet we are living in this earth, in the enemy territory. लेकिन हमको एक बात फिर से समझना है कि जब भी हम अंधकार की दुनिया राज्य से बाहर निकलते हैं, लेकिन फिर भी हम जो है इस धरती में हम वास करते हैं। For example, I could say somebody who lives as a slave in Africa suddenly has been given a passport to become a citizen of America. That's how drastic is the change. और उदाहरण के लिए मैं एक बताना चाहता हूँ, एक अफ्रीका के एक गुलाम को अचानक से अमेरिका के नागरिक बनने का जो अवसर मिलता है, उसके समान एक बहुत बड़ा बदलाव हम देख सकते हैं। But then you're still waiting in this place until the time where you can die and go to the kingdom of heaven, or until the trumpet call happens where Jesus comes back for you. और आप जो है इस धरती में, इस पृथ्वी में इंतजार में रहते हैं कि जब कभी मेरा मृत्यु होगा और कभी मैं परमेश्वर के साथ मिल जाऊंगा, या फिर कभी परमेश्वर आएंगे और तुरही फूका जाएगा। So suddenly a person, when they come to the kingdom of God, suddenly becomes an enemy in the world that they have lived so far. और जब भी परमेश्वर के राज्य में जब भी एक व्यक्ति प्रवेश करते हैं, तभी तुरंत वो जो है इस अंधकार के राज्य के लोगों का जो एक शत्रु बन जाते हैं, या उनके प्रति शत्रुत्व का एक नजर से वो लोग देखते हैं।
The enemy's eyes are always over you to attack your family, and to put you down. और शत्रु का जो नजरें हमेशा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर और आपको नीचा करने के लिए, नीचे गिरा देने के लिए लगी रहती है। But a child of God does not have to worry, because, as I said, all authority has been given to you through Jesus. लेकिन परमेश्वर का एक संतान को भय खाने का या डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सारा अधिकार परमेश्वर ने दिया है। But until Jesus comes, every believer has to fight and stand his ground to keep his salvation. और जब तक यीशु मसीह ना आए तब तक परमेश्वर के संतानों को युद्ध करना है, और हमारा जो उद्धार का जो टोपी है उसको हमको कायम बनाए रखना है। Then it becomes a fight for salvation. It becomes a fight for temptations, fight for family and kids, fight for job, fight from all sides. और हमारे कार्यों के लिए, हमारे नौकरी के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए हर एक ऐसे विषयों के लिए हमको युद्ध करना पड़ेगा। But Jesus has promised us that we are overcomers and we are victors, and there is no scenario or case that the believer that you will be defeated, because the victorious one is with you. लेकिन यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि हम जो है पराजित लोग नहीं है, लेकिन हम विजय प्राप्त किए लोग हैं, और हमको हराने के लिए कोई शक्ति का के पास सामर्थ्य नहीं है। I believe Pastor Reggie has been teaching you over the past few weeks on spiritual battle. और मुझे ये समझ में आया कि पास्टर जी आपको आत्मिक लड़ाई के बारे में सिखा रहे थे। Today I just want to remind you from Psalm 91. आज मैं आपको भजन संहिता 91 से एक और बार स्मरण दिलाना चाहती हूँ। I was so amazed that Pastor touched on that in the beginning of the prayer. पास्टर ने भी उस बातों को एक बार प्रार्थना के द्वारा बताया है। In Psalm 91 alone, it details the many dangers a child of God will face. और इस भजन संहिता 91 में एक परमेश्वर के व्यक्ति में कितना सारा शत्रु का जो शस्त्र आ सकता है उसके बारे में लिखा गया है। This psalm alone talks about 12 types of attack that can happen in the life of a child of God. और इस भजन संहिता में, केवल इस भजन संहिता में 12 प्रकार का वार जो शत्रु हमारे ऊपर कर सकते हैं उसके बारे में लिखा गया है। I'll just read a few. It just says, the snare of the fowler, perilous pestilence. और जो है जो जाल है या जो महामारी है, terror by night, arrow that flies by day. और अंधकार का जो भी ताकतें हैं, और जो तीर जो अंधेरे में फैला जाता है, pestilence that walks in darkness, destruction that lays waste at noonday. और जो महामारी जो अंधकार में बनी रहती है और जो नाश की अवस्था है। It talks about plague and evil and a stone, a stumbling stone. और रोग और बुराई और जो रोकने वाली बातों को वो कहते हैं। It talks about demonic powers as lion and cobra and serpent. और शैतान के जो ताकतों को सिंह के समान और सर्प के समान बताया गया है। Some of these are like temptations, it could be diseases, some are pandemics. और इसमें से कुछ जो है एक परीक्षा के समान, या फिर एक महामारी के समान, या फिर कुछ रोग के समान, natural destruction or demonic attacks and so forth. या प्राकृतिक जो नाश होता है, जो भी जो नाश होता है, या फिर शैतान का जो भी वार होता है उसके बारे में हम देखते हैं। No matter what is the type of temptation or whatever type of attack that comes from the enemy, और कितना प्रकार का भी जो वार शैतान की ओर से आने दो, फिर भी in the same psalm the Lord tells about 7 different types of provisions for protection. लेकिन इसी भजन संहिता में परमेश्वर 7 अलग-अलग प्रकार का जो प्रबंधन है हमारी सुरक्षा के लिए, उसको भी बताया गया है। It talks about staying in the secret place. और जो परम प्रधान के छाया स्थान में वास करने के बारे में कहते हैं। It talks about the refuge under the feathers. और उनके पंखों के तले छाया लेने के बारे में कहते हैं। It talks about the shield and buckler, the word of God. और परमेश्वर हमारा गढ़ है, उसके बारे में हम देखते हैं। The angelic protection and the power for trampling over Satan.
और स्वर्गदूत जो हमारे संरक्षण करते हैं और शैतान को कुचलने का जो अधिकार है उसके बारे में देखते हैं। The protection that comes from his name. और परमेश्वर के नाम से जो हमको जो सुरक्षा मिलता है उसके बारे में भी हम देख सकते हैं। And the promise of the help that will come when you call out to him. और जो वायदा जो हम पुकारने पर परमेश्वर का संरक्षण या सुरक्षा हमारे पास आने का जो वायदा है वो भी इसमें लिखा गया है। I just wanted to highlight these things, but I didn't want to go in detail in explaining these things. I want you to go home and read Psalm 91 and pray over the 7 types of protection that God has promised you. और इस बातों को मैं और भी स्पष्ट करना नहीं चाहती, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताना चाहती थी कि किस प्रकार से इसमें लिखा गया है और 7 प्रकार से किस प्रकार परमेश्वर हमको सुरक्षा करने वाले संभालने वाले हैं, उसको भी आप घर में मनन करना है। Psalm 91 is truly a psalm of guarantee for protection for the children of God. और भजन संगीता 91 जो हमारे एक हौसले का बात है कि परमेश्वर हमको हमेशा रक्षा करने वाला परमेश्वर है। But today I want to talk about the protection that the children of God need under this pandemic situation. लेकिन आज जो है पर इस महामारी के समय में परमेश्वर के लोगों को जो सुरक्षा का जरूरत है उसके बारे में आज बताना चाहती हूँ। One thing is very critical for the children of God. It is to understand what is going on around them, to understand the times and seasons. और एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है कि हमारे आसपास जो बातें हो रही है और समय है, जो चिन्ह है, उसको हम समझ पाए। It's to understand, is this pandemic permitted by God, or is it an attack from the enemy? Do we fight and pray against it, or do we plead with God? और हमको ये समझना है कि ये परमेश्वर की ओर से है या फिर शैतान का कोई वार है। क्या हमको इसको दूर करने के लिए उसको डांटना है या फिर प्रार्थना करना है? In Hosea chapter 4 verse 6, the Lord says, होसिया उसके 4 का 6वां आयत में परमेश्वर कहते हैं, my people are destroyed for the lack of knowledge. मेरे लोग ज्ञान का कमी के कारण वो नाश होते हैं। Many times people get confused and they actually don't know how to pray in the presence of God according to each situation. और बहुत से बार हम जो है हमारे अवस्था को समझ नहीं पाते हैं और उसके अनुसार प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। We see people dying around us. We can see things happening within the church. Godly men and women are passing away. और हम जो है लोगों को हमारे आसपास मरते हुए देखते हैं और परमेश्वर के इस दास और दासियों को, बच्चों को मरते हुए हम देख रहे हैं। Children of God get very agitated, very broken-hearted. They don't know what to do. Should I fight against the enemy and pray? Should I cry to God for mercy? Where do I go? How do I approach? परमेश्वर के लोग जो है इस सारी बातों को देखकर बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, उनके दिल में दर्द उठने लगता है। क्या मैं परमेश्वर के दया के लिए रो रो के प्रार्थना करूं या फिर शैतान के इस तंत्र को मैं डांट कर प्रार्थना करूं? This is exactly what Jeremiah talks about in chapter 14 verses 17 to 18. यही यिर्मयाह भी 14 अध्याय अपने पुस्तक में 14 अध्याय उसके 17वें आयत में करते हैं। In verse 18 he says, I go out to the field and I see the slain with the sword. 14 verse 18 sister. 14 verse 18. Yeah. If I go out to the और यिर्मयाह उसका 14 अध्याय उसका 18वां आयत में हम देखते हैं, यदि मैं मैदान में जाऊं तो देखो तलवार के मारे हुए पड़े हैं। And if I enter the city, behold, the sick are from famine. यदि मैं नगर के भीतर आऊं तो देखो भूख से अधमरे पड़े हैं। Yes, both prophet and priest go about in the land, they do not know. क्योंकि भविष्यवक्ता और याजक देश में कमाई करते फिरते और समझ नहीं रखते हैं। You see that here the Lord says, even the prophets and the priests in those days didn't know what is going on. हम यहाँ देख सकते हैं भविष्यवक्ता और याजक जो है उस देश में भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। That is why the child of God has to return to the word of God to understand what's going on. इसलिए परमेश्वर की संतानों को वचन की ओर लौटना है ताकि वो समझ पाए कि क्या बातें, कौन सी बातें हो रही है। First thing that we need to understand is that the pestilence or this pandemic is a judgment from God.
पहला बात हमको समझना है वो ये है कि जो महामारी है परमेश्वर की ओर से एक न्याय के समान है, that God has permitted this to happen. और परमेश्वर ने इसे होने का जो अधिकार होने के लिए दिया गया है। In Habakkuk chapter 3 verse 3 to 5, हबक्कुक उसका 3 से 5 आयत में we'll read, he says, his glory covered the heavens, and the earth was full of his praise. His brightness was like the light, and he had rays flashing from his hand, and there was power was hidden. Before him went pestilence, and fever followed at his feet. 3 verse 3 to 5 सिस्टर। Yeah. 3 से 5 आयत को हम देखेंगे। हबक्कुक 3 से 5, ईश्वर तेमान से आया, पवित्र ईश्वर परान पर्वत से आ रहा है, उसका तेज आकाश पर छाया हुआ है और पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण हो गई है। उसकी ज्योति सूर्य से तुल्य थी, उसके हाथ से किरणें निकल रही थी और इनमें उसका सामर्थ्य छिपा हुआ था। उसके आगे मरी फैलती गई और उसके पांव से महाज्वर निकलता गया। In the Old Testament, when the Lord talks to the children of Israel, many times he warns them that if you don't walk in my ways, or if the land becomes too wicked, I will send pestilence. और यहाँ हम देख सकते हैं पुराने नियम में बहुत से बार जब भी परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के वचन को खिलाफ किया या परमेश्वर के विपरीत काम करते थे, तो परमेश्वर को कहते थे कि मैं तुम्हारे ऊपर मरी को भेजूंगा यदि आप लोग इस आज्ञा को उल्लंघन करो तो। But at the same time, the Lord says, if you repent and if you come back to me and you seek my face, I will remove it from you. और उसी समय परमेश्वर भी ये भी कहते हैं कि यदि आप पश्चाताप कर उस बातों को छोड़ दे तो मैं आपके ऊपर करुणा को बरसाऊंगा। I think we've all been very familiar praying over this verse in the last few months and this year. In 2 Chronicles chapter 7 verse 12 to 14, we read the same thing. और दूसरा इतिहास उसका 7 का 14वें आयत में भी हम सब लोग इन दिनों में इसी बातों को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं कि दूसरा इतिहास 7 का 14 के आयत को हम देखेंगे। I'll read it. 2 Chronicles chapter 7 verse 12 to 14. It says, then the Lord appeared to Solomon by night and said to him, I have heard your prayer and have chosen this place for myself as a house of sacrifice. When I shut up heaven and there is no rain, or command the locusts to devour the land, or send pestilence among my people, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. दूसरे इतिहास 7 का 12 से 14वां आयत को मैं पढ़ूंगी। तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा न हो या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। You see, it says, I will shut up the heavens. There will be no rain. I will command the locusts and I will send pestilence. So the Lord says that he will do these things when there is wickedness in the land. और यहाँ हम देख सकते हैं परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि मैं आकाश को बंद करूंगा, मैं टिड्डियों को भेजूंगा और मैं मरी को भेजूंगा यदि परमेश्वर के लोग आज्ञा का उल्लंघन करें। In the Old Testament alone, there are over 25 times the Lord says this. And he also talks about this in Matthew 24 and in the book of Revelation as well. और पुराने नियम में लगभग 25 बार इस बातों को परमेश्वर ने कहा गया है, परमेश्वर ने कहा है, और इसको मत्ती की पुस्तक में भी और हम प्रकाशित वाक्य में भी देख पाते हैं। We see in this generation in the last few years that sin and wickedness has increased so much around the world and so much even within India. और हम देख सकते हैं पिछले दिनों में, पिछले सालों में दुनिया में और भारत में किस प्रकार से पाप का जो है बढ़ोतरी हो चुका है। We just need to look at the news or watch TV or YouTube. It's so
obvious that sin has increased in unimaginable ways. और हमको केवल न्यूज को देखना है या फिर हमारे यूट्यूब को देख सकते हैं कि इससे पता चलता है कि चलता है कि किस प्रकार से हमारी सोच से परे बातों में पाप फैल गया है. You see people willingly going and worshipping Satan and calling Satan as God. और लोग जो है स्वयं जाकर शैतान की आराधना करते हैं और उसको शैतान को परमेश्वर के रूप में बुलाते हैं. We see all kinds of sexual perversion that is made legal. और बहुत सारे लैंगिक जो पाप है उसको न्याय के रूप में जो है सही समान सही है ऐसा ठहराया गया है. You see little children are being sacrificed either as abortion or given to idols. और छोटे बच्चों को उनका भ्रूण हत्या कर दिया जाता है या फिर उनको मूर्तियों के सामने बलिदान के रूप में दे दिया जाता है. The cry to God that goes from the earth, the blood that is shed on the ground, that cries to God day and night for justice is reaching high proportions. और जो इस धरती में जो भी एक एक बूंद लहू गिरता है उसको उनका जो रोना है और जो जीवन का अंत जो जीवन या तड़पते हैं उसका रोना और जो न्याय के लिए जो रोना है वो सब कुछ स्वर्ग में पहुंच रहा है. Last week I heard two stories, one both in South India, where they have sacrificed a little toddler, 3-year-old, 4-year-old kid to a Hindu idol. और मैंने पिछले हफ्ते में एक वार्ता को इस प्रकार से पढ़ा कि दो बच्चों को जो छोटे थे 3 या 4 साल के बच्चों को मूर्ति के सामने बलिदान कर दिया गया. 11-year-old little girl was taken by her own parents to be killed and given sacrifice to a Hindu god so that they can come out of financial difficulties. और एक 11 साल के बच्ची को उनके स्वयं बच्ची के ही माता पिता ने उनके देवता के सामने मार डाला ताकि वो अपने आर्थिक स्थिति से बच पाए. There is a blood crying out. There are innocent lives crying out to the heavens. God, do something about this. Bring justice to the earth. There is a cry that goes heavenward day and night, demanding God for justice. तो इस प्रकार से कोरोना जो है एक न्याय के लिए जो रोना होता है जो निष्कलंक जो रक्त है वो उसका रोना दिन और रात स्वर्ग की ओर जाता रहता है. On the other hand, you would have seen where in the Kumbh Mela on 14th of April, you see 9 million devotees going to have a dip in the Ganges and glorifying idolatry in this nation. और हम देख सकते हैं कुंभ मेला में भी कैसा 9 मिलियन लोग जो है वहां जाकर उस पानी में डूबते हैं. The anger of God is aroused over the nation and also the nations of the world. और जो परमेश्वर का क्रोध जो है लोगों के ऊपर और इस राज्य के ऊपर आ गया है. What does a Christian do? और एक मसीह को क्या करना है? I'm just prompted to speak on this as many times Christians really don't know what to do. और मैं ये कहना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे बार मसीह लोग जो है क्या करना है वो समझ नहीं पाते हैं. We don't know whether we should be binding or releasing or fighting the enemy or pleading with God for mercy. हम नहीं जानते कि क्या हमको इसको बांध कर प्रार्थना करना है, इसको डांट कर प्रार्थना करना है या फिर परमेश्वर से कृपा के लिए प्रार्थना करना है. The Lord brought to my mind 2 main things a child of God ought to do at this time. और परमेश्वर ने 2 बातों को मुझे स्पष्ट स्थिति में बताया जो परमेश्वर के संतानों को करना है. Number 1, protect yourself and your family. सबसे पहला है कि अपने आप को और अपने परिवार को संभाल के रखिए. You are still living in Egypt. Until you get yourself out of this Egypt, you need to protect yourself. और आप अभी भी उस मिस्र देश में रह रहे हैं और इस मिस्र से उस काना देश में जाने तक आपको अपने आप को संभाले रखना है. I'll bring to your remembrance the story where the Lord judged the land of Egypt. और मैं आपको उस जो कथा है उसकी ओर आपको लेके जाना चाहता हूँ जिधर परमेश्वर ने मिस्र देश में अपना न्याय भेजा था.
when the Lord was judging Pharaoh and his family, जब भी परमेश्वर फारो और उसके परिवार के ऊपर न्याय कर रहे थे, the Lord asked the children of Israel to stay in the house. परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को उनके घरों में रहने के लिए कहा। In Exodus chapter 12, verse 12 to 13, we read, और निर्गमन उसका 12 अध्याय उसके 12 से 13वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, the Lord says, परमेश्वर कहते हैं, I will strike all the firstborn in the land of Egypt. मैं मिस्र के सारे पहलौठों को मारूंगा, Both man and beast, against all the gods of Egypt. I will execute judgment. I am the Lord. Now the blood shall be a sign for you on the houses where you are. And when you see the blood, I will pass over you, and the plague shall not be on you to destroy you when I strike the land of Egypt. और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगी। The Lord made a way for the children of Israel to be protected when the plague was passing through Egypt. परमेश्वर ने परमेश्वर के संतानों के लिए एक मार्ग बताया, जिससे वो उस महामारी से या फिर उस नाश से बच पाए। He instructed them to put the blood of the lamb in their doorposts. और उन्होंने उनको उनके घरों के जो काट है उसके ऊपर सब लहू को छिड़कने के लिए कहा गया था। So you got to stay within the refuge of the blood of Jesus. यीशु मसीह के उस लहू के शरण में आपको रहना। Speak it over your family and smear the blood of Jesus over all your family members. और आपको उस परमेश्वर के लहू को आपके परिवार के ऊपर कहना है, और आपके परिवार के हर एक लोग के ऊपर उसको विश्वास के साथ कहना है। Let every night be a night of Passover for your family. और हर एक शाम जो है, हर एक रात का अवस्था जो है, आपके लिए एक फसह का पर्व के समान होने पाए। Consciously and effortfully cover each one in your family under the blood of Jesus. और आपके समझ के साथ आपके परिवार को और आपके घर के हर एक सदस्य को यीशु मसीह के लहू में आपको डाप देना है। Hold family prayers every day and speak Psalm 91 over your families. और हर एक दिन जो परिवार का प्रार्थना आपके घर में रखना है, और इस भजन संहिता 91 की घोषणा को करना है। Stay under the blood of Jesus. और यीशु मसीह के लहू के अधीन रहना है। In Romans chapter 5 verse 9 we read, रोमी उसके 5 का 9वें अध्याय में आयत में हम पढ़ते हैं, much more than having now been justified by his blood, we shall be saved from the wrath through him. अतः जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। By the blood of Jesus we will be saved from the wrath that is passing through. और यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो जो क्रोध है, उससे परमेश्वर के क्रोध से हम बच पाएंगे। Imagine what would have happened if some of the children of Israel, a few of them, did not stay in the house, if they had gone out to be relaxing or gone out for work that night. What would have happened to them? और आप केवल सोचिए, यदि इज़राइल के कुछ लोग उस रात के समय में उस लहू को अपने द्वार में या फिर काट में नहीं लगाते, या फिर किसी काम के लिए वो घर के बाहर जाते या टहलने के लिए घर के बाहर जाते, तो क्या होता। Stay vigilant, stay careful, so that you will not come under the wrath of God. हमको जो जागृत रहना है, सचेत रहना है, ताकि हम परमेश्वर के उस क्रोध के नीचे ना आ पाए। God has made a provision for protection for each one of our families, but we must take action. We must be careful. We must be vigilant. परमेश्वर ने हम हर एक व्यक्ति को संभालने के लिए एक प्रबंध किया है, लेकिन हमको स्वयं सचेत रहना है और हमको संभालना है। Secondly, what should a child of God should do? और दूसरा बिंदु जो है, जो एक मसीह कर सकता है, वो ये है,
a child of God needs to intercede. और परमेश्वर का व्यक्ति संतान जो है मध्यस्थ करना है। For example, I will go to Numbers chapter 16. उदाहरण के लिए मैं गिनती उसका 16वें आयत में जाती हूँ, Verses 44 to 49. और उसका 44 से 49 हम लोग देखेंगे। So here we see Numbers 16, Numbers 16, 44 to 49. गिनती उसका 16 अध्याय उसका 44 से 49 आयत को हम देखेंगे। Here we see the story of where Moses and Aaron interceded for the children of Israel. और यहाँ हम देख सकते हैं मूसा और हारून जो है इस्राएल के लिए मध्यस्थ करते हैं। So what had happened? There were three men called Korah, Dathan, and Abiram. और यहाँ हम देख सकते हैं 3 प्रकार के लोग हैं जो कोरा, दातान और अभिराम हैं। So they rebelled against Moses and his leadership. वो लोग मूसा और मूसा के जो नेतृत्व को खिलाफ बोलते हैं। God was very angry with these three men, and he consumes them with the earth opens up and it swallows them alive. परमेश्वर जो इन 3 लोगों से बहुत ही क्रोधित है और पृथ्वी जो है खोलकर इन 3 लोगों को निगल लेती है। But then what happens the next day? The Israel people get very angry with Moses, saying that you have killed these three men. और अगला दिन जो है लोग जो है मूसा के प्रति क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि आपने इन 3 लोगों को मार डाला है। God gets very angry. The Lord gets very angry with the children of Israel because they continue to rebel against him and his appointed leader Moses. परमेश्वर जो है इन लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाता है क्योंकि वो लोग परमेश्वर के खिलाफ और मूसा के खिलाफ बलवा करने लगते हैं। And the anger of God goes against the children of Israel. और परमेश्वर का क्रोध इस्राएल के इस लोगों के विरोध में जाता है। And there is a plague that starts killing people immediately. और वह एक महामारी फैल जाती है जो लोगों को तुरंत मार डालती है। It is a plague much worse than COVID-19. वो कोविड-19 से भी बहुत ही भयंकर एक महामारी थी। Because people were immediately falling dead. क्योंकि लोग तुरंत ही गिरकर मर रहे थे। Then when Moses sees what's going on, that the anger of God has gone to the people. लेकिन जब मूसा ने देखा कि लोगों का जो क्रोध जो है उसको परमेश्वर ने देखकर परमेश्वर क्रोधित है। From verse 46 onwards I will read. He talks to Aaron. और 46 अध्याय से हम पढ़ेंगे पर वो मूसा हारून से कहते हैं। So he says, so Moses said to Aaron, take a censer and put fire in it from the altar. Put incense on it and take quickly to the congregation and make atonement for them. For wrath has gone out from the Lord. The plague has begun. Then Aaron took it as Moses commanded and ran into the midst of the assembly. And already the plague had begun among the people. So he put incense and made atonement for the people. And he stood between the living and the dead. So the plague was stopped. And now when those who died in the plague were 14,700, besides those who died in the Korah incident. So Aaron returned to Moses at the door of the tabernacle of the meeting, for the plague had stopped. और उसका 46 आयत से मैं पढ़ रही हूँ। और मूसा ने हारून से कहा, धूप दान को लेकर उसने वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल, मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मेरी फैलने लगी है और मरी फैलने लगी है। मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर मंडली के बीच में दौड़ा गया और यह देखकर कि लोगों में मरी फैलने लगी है, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया और वह मुर्दों और जीवितों के मध्य में खड़ा हुआ। तब मरी थम गई और जो कोरा के संग भागी होकर मर गए थे उन्हें छोड़ जो लोग इस मरी में मर गए वह 14,700 लोग थे। तब हारून मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मूसा के पास लौट गया और मरी थम गई। So we see here that Moses, even though these people have come against him, he stands
interceding for them. और यहाँ हम देख सकते हैं मूसा यहाँ जो है लोगों के लिए मध्यस्थ करते हैं, क्योंकि लोगों ने मूसा के खिलाफ बातें किया, लेकिन फिर भी वो उनके लिए मध्यस्थ करते हैं। He sends Aaron to run between the people and to stand between the living and the dead. और वो आरोन को भाग कर जाने के लिए कहते हैं और मुर्दों और जीवितों के बीच में रुकने के लिए कहते हैं। And God, who is angry with the people, he gets pacified, or he calms down and he stops the killing when he sees Aaron bringing the smoke, the incense up to him. और जब भी परमेश्वर इस मध्यस्थ को, इस प्रायश्चित को देखते हैं, और जब भी मुर्दों और जीवितों के बीच में हारून उस दुधान को जलाते हैं, तभी परमेश्वर उसको देखकर उनका जो क्रोध है वो थम जाती है। Moses and Aaron stood as intercessors for Israel at that time. और मूसा और हारून जो है एक मध्यस्थ के रूप में इजराइल के लिए वहां खड़े रहते हैं। God has an expectation on each of his children that we would be like Moses and Aaron when his anger goes through the land. और परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी मूसा और हारून के समान एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करें या प्रार्थना करें जब भी परमेश्वर का क्रोध इस दुनिया में भड़क उठा है। Because just as how Moses and Aaron had an impact in stopping the plague and reducing the number of death, so can you and I make a difference today. जिस प्रकार मूसा और हारून का मध्यस्थ ने उस महामारी को फैलने से रोका और लोगों के मृत्यु से ज्यादा मृत्यु होने से रोका, उसी प्रकार से हम भी एक बदलाव हमारे इस अवस्था में लेके आ सकते हैं। In Ezekiel chapter 22 verse 30 to 31, एजिकियल उसका 22 अध्याय उसका 31 से 30 और 31वें आयत में हम देख सकते हैं। we read that God is, Ezekiel chapter 22 verse 30 and 31. एजिकियल 22 उसका 30 और 31वें आयत को हम देखेंगे। We see that God is looking for a man like Aaron and Moses. And we see that he says, so I sought for a man among them who will make a wall and stand in the gap before me on behalf of the land, that I should not destroy it, but I found no one. Therefore, I have poured out my hand on them. I have consumed them with the fire of my wrath, and I have recompensed their deeds on their own heads, says the Lord God. और परमेश्वर यहाँ कहते हैं, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े के सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। इस कारण मैंने उन पर अपना रोष भड़काया और अपने जलजलाहट की आग से उन्हें भस्म कर दिया। मैंने उनकी चाल 19 के सिर पर लौटा दी है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। See, God is continuing to look for a person. Here he says in Ezekiel that he looked for a person and he couldn't find anybody, and his full anger came upon the land. और यह परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर ढूंढ रहे थे कि ऐसा कोई व्यक्ति मध्यस्थ खड़ा रहे, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं था। We have a very responsible position in front of God. और परमेश्वर के सामने हमारे पास बहुत ही ज्यादा उत्तरदायित्व है। Just like that incense that went up before the Lord when Moses was burning it up. और जिस प्रकार से वो धुआं उस धूपदान से ऊपर जा रही थी जब भी मूसा उसको जला रहे थे। Every time we kneel down and we cry out to God and we pray and we intercede for the land, the anger of God reduces on our behalf. और उसी प्रकार हर बार जब भी हम घुटने टेकर हमारे देश के लिए रोते हैं, मध्यस्थ करते हैं, तभी परमेश्वर का क्रोध जो है और परमेश्वर का क्रोध कम होने लगता है। See, I want to remind you the story of Lot. और लूत के बारे में मैं कहना चाहती हूँ। In Genesis chapter 19, we read the story of Lot and how Abraham interceded for Lot. उत्पत्ति 19वें आयत में हम लूत के बारे में हम देख पाते हैं और किस प्रकार से अब्राहम लूत के लिए वो मध्यस्थ करते हैं, उसको हम देख पाते हैं। So when the Lord says, I'm going to destroy Sodom and Gomorrah, Abraham starts bargaining with God.
और जब भी परमेश्वर कहते हैं कि मैं सोदोम और गोमेरे को नाश करने वाला हूँ, तभी अब्राहम जो है परमेश्वर के साथ बातें करने लगते हैं, or he was interceding with God. या फिर परमेश्वर के सामने वो लोत के लिए मध्यस्थ कर रहा था। He starts to say, Lord, if there are 50 good people in that land, will you destroy the righteous with the wicked? वो पूछने लगते हैं, यदि परमेश्वर उस देश में 50 धर्मी लोग हैं, तो क्या आप उस देश को नाश करेंगे? What is this 50? Is this like some magic number? Where did Abraham get this 50 number from? और 50 ये जो संख्या है वो एक क्या कोई जादुई संख्या है? अब्राहम को ये 50 संख्या किधर से मिला? Abraham would have thought Lot, who knew the Lord, who stayed with him for so long, who knows about the Lord, will actually would have prepared his family, would have told him about the Lord, and at least he would have made 50 people out of his servants and everybody to know the Lord. और अब्राहम जो है लूत को जानते हैं, और यदि वो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चले या परमेश्वर के बारे में वो उनको कह पाते थे, तो परमेश्वर जो है जो अब्राहम जो है उनको परमेश्वर के स्रोत के बारे में या फिर इस जो आने वाली विपत्ति के बारे में तैयार करते थे, और शायद से या फिर परमेश्वर के बारे में उनको ज्ञान देकर लगभग 50 लोगों को तैयार कर पाते थे। So when Lot, so that's why Abraham said, okay, he must have had over 300 servants. He has, his whole family. So at least of all those people, he must have at least gained 50 people for me. So at least 50 righteous Lot must have managed to have. और जब भी हम देखते हैं कि अब्राहम के पास 300 से अधिक नौकर और लोग थे, और यदि वो समय मिलता तो अब्राहम जो है उसमें से लगभग 50 लोग जो है उसको परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरा सकते हैं। But the Lord says no, and then the number reduces to 45. और परमेश्वर जो है नहीं कहते हैं, और जो संख्या है वो 45 की ओर चले जाता है। And then Abraham says, Lord, there must be at least 40 people that Lot must have influenced. Hence, if 40 people are there, will you destroy the place? और फिर अब्राहम कहते हैं कि परमेश्वर शायद से 40 लोग होंगे जिसको लूत ने धर्म के मार्ग में चलाया होगा, तो लगभग 40 लोगों के लिए क्या आप उनको बचाएंगे? The Lord says, even if it is 40 there, I will not destroy the place. और परमेश्वर कहते हैं यदि 40 लोग हैं तो मैं उस देश को नहीं नाश करूंगा। The number goes down to 30, to 20, and to 10. फिर वो जो संख्या है वो 30, फिर 20, फिर 10 की ओर चला जाता है। But to Abraham's biggest disappointment, Lot had not done anything for the Lord in that place, to have 10 people to say as righteous in Sodom and Gomorrah. लेकिन अब्राहम जो है इतना दुखी हो गया कि लूत ने वहां लगभग 10 लोगों को भी धर्मी या परमेश्वर के मार्ग में धर्मी रहने के लिए वहां जो है उसका बना नहीं पाए, तैयार नहीं कर पाए। Abraham must have thought at least there are 4 people in Lot's family. At least 6 more people he would have told about the Lord. So at least there should be 10. तो अब्राहम ने सोचा कि लूत के परिवार में 4 लोग हैं, और लगभग 6 लोगों को उन्होंने परमेश्वर के बारे में बताया होगा। But sadly, Lot had not done anything for the Lord in Sodom and Gomorrah. लेकिन and we see that whole city was destroyed. और हम देख सकते हैं लूत ने सोदम और गोमोरे में परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, और सारा जो शहर है वो नाश की ओर ही जाता है। Lot had failed to intercede for the land. Lot had failed to build up a group of people a group of righteous people in the land. और लूत जो है परमेश्वर के लिए एक लोगों को तैयार करने के लिए या फिर धर्मी लोगों को उस देश में तैयार करने के लिए वो पराजित हो जाता है।
And this becomes a challenge for us because God has placed us in the land where we are, wherever God has placed us. What is our level of influence? What is our duty for intercession for that land that we are failing to do? और हमारे सामने भी इस प्रकार से एक चुनौती या एक बोझ है कि हम किस प्रकार से जिस देश में हम वास करते हैं, किस प्रकार से हम उसके लिए मध्यस्थ कर सकते हैं। If Lord had not raised sufficient people to और save यदि the land from God's wrath, और लूत ने लोगों को यदि इकट्ठा किया होता कि परमेश्वर के उस क्रोध से बच पाए, he didn't intercede for the land. उन्होंने उस देश के लिए मध्यस्थ नहीं किया, लूत ने उस देश के लिए मध्यस्थ नहीं किया। Because of him, that land was destroyed. और उनके कारण उस देश का नाश हो जाता है। Later on, we see he lost his wife. फिर हम देखते हैं वो अपने पति को भी खो देते हैं। He lost all his possessions. पत्नी को खो देते हैं और सारा धन दौलत को खो देते हैं। And his children's children, his lineage was so messed up. और उनका जो बच्चों का जो संतान है वो भी बहुत ही बुरे रीति में था। Then eventually God destroyed them altogether. और परमेश्वर ने उनको ही पूरे रीति से नाश कर दिया। Now today the Lord's burden for concerning us is, और आज जो परमेश्वर का जो बोझ है हमारे प्रति वो ये है that we will stand in the gap for the land. और हम जो है उस बीच में जो दरार है उसमें खड़े रहकर मध्यस्थ के रूप में कार्य करें। We've been praying for India and we praying for the global COVID situation last week and the last 2 weeks. और हम भारत के लिए और जो महामारी फैली हुई है उसके लिए हम पिछले 2 हफ्ते से प्रार्थना कर रहे हैं। A bit more seriously than before. और पहले से भी ज्यादा तीव्रता के साथ हम प्रार्थना कर रहे हैं। The Lord showed a vision to one of my friends. और परमेश्वर ने मेरी एक सहेली को इस प्रकार से एक दर्शन दिखाया। That there was a big sword that comes and touches the land and divides the land into 2 parts. और एक बहुत बड़ा तलवार जो है ऊपर से आकर इस देश के ऊपर एक जमीन के ऊपर गिरता है और वो जमीन को 2 भाग में टुकड़ा कर देता है। And on one side it's completely burnt up and destroyed, and on the other side it's green. और एक भाग जो है पूरी रीति से जल चुका है और वो राख बन गया है, लेकिन दूसरा भाग जो है वो हरी भरी हुई। And the sword is dividing the 2 sides of the land. और जो तलवार है वो उस जमीन को 2 भाग में टुकड़ा कर रहा है। On the dark burnt side, she sees so many slaves kind of people kneeling down. They're burnt up, almost burnt up, but they're pleading to God for mercy. और उस जो जिस भाग जो जल चुका है, जो राख की अवस्था में है, वहाँ गुलाम के समान बहुत सारे लोगों को जो जले हुए हैं, फिर भी वो घुटने टेकर परमेश्वर के सामने करुणा के लिए रो रहे हैं। And my friend hears the voice of prayers rising. और मेरी दोस्त जो है उनकी जो प्रार्थना के शब्दों को वो सुनती है। And she saw the Lord riding in a white horse between these 2 lands. और फिर उन्होंने परमेश्वर को एक सफेद घोड़े पर इस दोनों जमीन के टुकड़ों के बीच में आते हुए देखे। And the Lord told her, if the people pray, my anger, my fire, the consuming fire, will stop and these people will live. और तभी परमेश्वर ने मेरे उस सहेली से इस प्रकार से कहा, आवाज से कहा कि यदि लोग प्रार्थना करें, यदि लोग दुआ करने लगे तो मेरा जो क्रोध है वो थम जाएगा और वो लोग छुटकारा प्राप्त करेंगे। See, God expects that we will stand and cry out and pray. Many times you just feel it's such a big problem, the immensity of the situation is just too much. What can I do? I'm just praying, nothing seems to be happening. और बहुत से बार परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी इस प्रकार से खड़े रहकर मध्यस्थ करें,
लेकिन हम समझते हैं कि ये जो समस्या है वो बहुत बड़ा है और मैं अकेले क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। But for each person's prayer, sincere prayer, prayer with tears and pleading unto the Lord, लेकिन हर एक व्यक्ति का जो प्रार्थना है, जो यथार्थ हृदय से वो करते हैं और उनका जो आंसू है, we'll see the numbers come down. You will see who are those people who got saved or whose lives were spared one day when you go to heaven. और वो आप देखेंगे कि लोगों का मरने का जो संख्या है वो कम हो जाएगा और लोग जो बच रहे हैं उनका भी संख्या बढ़ने लगेगा और आप उनका जो प्रतिफल है उनको उनके बारे में जो स्वर्ग में आप देख पाएंगे। God is looking for people who would really pour out their heart and pray. और परमेश्वर ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो अपने हृदय को खोलकर प्रार्थना करें। People who won't even care about their own lives, but they will stand, kneel down, and stand in the gap. और जो लोग अपने लिए तो नहीं लेकिन दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना कर कर गिड़गिड़ाकर घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं। Those who are willing to cry before the presence of God. और वो लोग जो परमेश्वर की उपस्थिति में रोने के लिए तैयार है। This is what you read in Jeremiah chapter 14. और यिर्मयाह 14वां आयत में इस प्रकार से आप पढ़ते हैं, verses 17 to 18. उसका 14 का 17 से 18वां आयत देखते And हैं। I will read. हम पढ़ेंगे। I will read the verse. It says, "Therefore you shall say this word to them: Let my eyes flow with tears day and night, and let them not cease. For the virgin daughter of my people, who has been broken with a mighty stroke, with a very severe blow. If I go out to the field, and then behold those slain with the sword. If I enter the city, then behold those sick from the famine. Yes, both the prophet and the priest go about in the land, and they do not know." 17वां आयत इस प्रकार से कहता है, तो उनसे यह बात कह मेरी आंखों से दिन रात आंसू लगातार बहते रहे, वे न रुके, क्योंकि मेरे लोगों की कुंवारी बेटी बहुत ही कुचली गई और घायल हुई है। यदि मैं मैदान में जाऊं तो देखो तलवार से मारे हुए पड़े हैं, यदि मैं नगर में के भीतर आऊं तो देखो भूख से अधमरे पड़े हैं, क्योंकि भविष्यवक्ता और याजक देश में कमाई करते फिरते और समझ नहीं रखते हैं। See, the prophet cries. He says, "Let my eyes flow with tears day and night." और यहाँ जो भविष्यवक्ता है वो रो रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे आंखें दिन और रात आंसू लगातार बहाते रहे। God is looking for people who will just drop whatever work they're doing, whether they are in the office, whether they're at home cooking, or they're doing whatever they're doing. When the burden of God comes, God expects people to just let things be and kneel at His presence and cry for the people. और परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहते हैं जो अपने सारे बातों को छोड़कर अपना नौकरी को या फिर अपने काम करने के समय को हटाकर रखकर और घुटने टेक कर परमेश्वर के लोगों के लिए मध्यस्थ करें। The Lord will protect your family and all the things that belong to you when you take the burden of Christ. परमेश्वर आपको और आपके परिवार को संभालेंगे जब भी परमेश्वर मसीह का जो बोझ को आप उठाने लगते हो। So, dear children of God, number one, protect yourself and your family under the blood of Jesus. परमेश्वर के लोगों, सबसे पहला बिंदु ये है कि आपने आपको और अपने परिवार के लोगों को यीशु मसीह के लहू के नीचे ढाप लीजिए। Think of it as taking vaccination every day. और उसको ऐसे समझ लीजिए कि प्रतिदिन आप वैक्सीनेशन ले रहे हो। Every night, put your family under the protection of God. हर एक रात में आपके परिवार को परमेश्वर के लहू के संरक्षण में रखिए। Read Psalm 91 and pray over it. भजन संगीता 91 को पढ़िए और उसके ऊपर प्रार्थना कीजिए। I just want to read 91. It says, "He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty." और वचन कहते हैं वो जो परम प्रधान के साए में रहते हैं वो और जो उसके सर्वशक्तिमान के छाया में टिकाना पाएगा। So what is the most secret place of the Most High? और परम प्रधान के छाया हुआ या जो उस गुप्त का स्थान कौन सा है?
Sorry about that. So the secret place of the Most High is the Holy of Holies. और परमेश्वर का जो परम प्रधान स्थान है वो अति पवित्र स्थान है। The Holy of Holies is a place where everybody can't go in the Old Testament. और अति पवित्र स्थान वो स्थान है जिधर पुराने नियम में सभी लोग जा नहीं पाते थे। But you are allowed to go into the most holy place, the most holy of holies. लेकिन आपको वो अति पवित्र स्थान में जाने का अधिकार परमेश्वर ने दिया है। What is the shadow of the wings? और उस परम प्रधान का छाया का अर्थ क्या है? Once you go into the most holy place, there is the Ark of the Covenant, where there's the wings of the cherubims. और जब भी आप अति पवित्र स्थान में जाते हैं तभी आप देखते हैं वहाँ वाचा का संदूक है और उसके ऊपर केरूब जो है उसके पंखों को आप देख पाते हैं। Not only you go into the most holy place, you bow down under the wings of God. केवल उस अति पवित्र स्थान में जाना नहीं है, लेकिन परमेश्वर के उस छाये में आपको अपने आप को झुक कर उसके साये में रहना है। The Ark of God has the blood of atonement. और परमेश्वर का उस वाचा के संदूक में जो है वो जो प्रायश्चित का जो लहू को हम देख पाते हैं। Every day you go into the presence of God and you stay under those wings, under the blood protection. और हर दिन आप उस परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में जाना है और परमेश्वर के लहू के अधीन में आपको वास करना है। There's no coronavirus that can touch you. और कोई भी कोरोना वायरस आपको छू नहीं पाएगा। Because God is your refuge. कि परमेश्वर आपका गढ़ है। So dear children of God, इसलिए परमेश्वर के लोग हो, stay under the presence of God. परमेश्वर के छाये स्थान में वास कीजिए। While you're there, cry out for the people. और जब भी आप वास करते हैं तभी परमेश्वर लोगों के लिए रोइए। Don't be like Lot, और लूत के समान ना बनिए, who just lived a selfish life, and because of that he did not leave a heritage for his children. और जो एक स्वार्थी जीवन जिए और उसने अपने संतान के लिए कुछ भी धन या कोई भी बातों को छोड़ते नहीं है। Cry out for the people of the land. और इस जमीन के लोगों के लिए रोइए आप। The Lord will be faithful to bring a turnaround. और परमेश्वर जो विश्वास योग्य है, जो एक बदलाव को लेके आएंगे। Let's bow down our heads in prayer. हम अपने आंखों को बंद कर सिरों को झुकाएंगे प्रार्थना में। Our loving and gracious Heavenly Father, हमारे प्यारा पिता परमेश्वर, Lord, we have read your word and we've meditated on it, Lord. हमने आपके वचन को सुना है और उसके ऊपर हम मनन किए हैं। Lord, even though there's gross darkness that's filling the earth, परमेश्वर इस अंधकार की अवस्था में सिस्टर प्लीज अनम्यूट। साउंड नहीं है, नो साउंड। the Son of Righteousness will, Lord. और हम प्रार्थना करते कि इस Lord, I pray that you will, Lord, I pray that you will cover each one of your children who are present in this meeting today, Father. परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक व्यक्ति जो आज हमारे साथ जुड़े हैं उनको आप संभाल के रखिए। That will be a hedge of fire around their houses. और आपका एक दीवार उनके घरों के आसपास बने रहे। We smear your blood over their doorposts. और आपका लहू को उनके घरों के द्वार में लगा दीजिए। Let no plague come near their dwelling place, Father. और कोई भी रोग उनके घरों के पास ना आने पाए। We commit them into your mighty hands. आपके बलवंत हाथों में उनको संभालते रखते हैं। All that is theirs, their families and their relatives, I pray that you will protect, oh Father God. और उनके परिवार के हर एक सदस्य को और उनके रिश्तेदारों को आप संभाल के रखिए। Lord, I pray that you will remove fear out of them. और मैं प्रार्थना करते कि उनके जीवन से आप भय को निकाल दीजिए। That you will blow your strength over them, Father. और आपका जो सामर्थ्य को आप उनके ऊपर फूंकिए। Holy Spirit of God, we commit them into your protection.
परमेश्वर आपको आपके संरक्षण में हम रखते हैं। Lord, we cry out for India today, Lord. और हम भारत के लिए आज प्रार्थना करते हैं। For the land of 1.3 billion people, Father. और करोड़ों लोग जो यहाँ वास करते हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। Lord, they don't know the difference between the left hand and the right hand, Father. परमेश्वर उनके दाएं और बाएं हाथों का बीच का अंतर भी वो समझ नहीं पाते हैं। Innocent people who are being led astray by the enemy. और बहुत सारे निष्कलंक लोग जो शैतान के अधीन होकर गलत रास्तों में जाते हैं। Yes, Lord, they have turned their backs to you. और वो आपके और बहुत बार मुड़े हैं। They have killed your pastors and your evangelists, Lord. और वो आपके दासों को और आपके 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 लोगों को मार डाले हैं। But have mercy over the land, Father. लेकिन हम उन इस जमीन के लिए कृपा के लिए दया के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Because we remember Jesus who died for them on the cross. क्योंकि हम स्मरण करते हैं यीशु मसीह जो उनके लिए उस क्रूस पर मरे हैं। That blood that speaks good things more than the blood of Abel. और वो जो लहू जो सारे भलाई के बातों को कहते हैं। The blood that pleads for them, the blood that seeks forgiveness, the blood that heals the land. और वो लहू जो चंगाई देता है, वो लहू जो क्षमा करते हैं और वो लहू जो छुटकारा को देता है। Lord, today we stand between the living and the dead. लॉर्ड परमेश्वर आज हम उस जीवित और मृत के लोगों के बीच में हम खड़े हैं। And we ask of you to have mercy over the land, Lord. और हम प्रार्थना करते कि आपका कृपा हमारे ऊपर बरसाए। Heal India, Father God. और भारत को आप चंगा कीजिए। Let my people come to know you, Lord. और हमारे लोगों को आपको जानने पाए। Let my people's eyes of understanding be opened, Father God. और लोगों की आंखों को आप खोल दीजिए। Lord, give them a heart of flesh and take away the heart of stone, Father God. और उनके पत्थर के हृदय को हटाकर एक मांस के हृदय को आप दीजिए। Lord, those who are in ICUs and people who are fighting for their lives tonight. और परमेश्वर वो लोग जो आईसीयू में है और अपने जीवित रहने के लिए जो लड़ाई कर रहे हैं। I pray that you will help them, O Lord. और प्रार्थना करते कि आप उनको संभालिए। Give them a chance to know you. और आप उनको एक भल्क को दीजिए। Lord, we particularly pray for every missionary, every pastor, every evangelist, every person who calls on your name and stands for the word of God. परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक पासवान के लिए, हर एक परमेश्वर के लोगों के लिए, हर एक मिशनरीज के लिए, हर एक इवेंजलिस्ट के लिए जो आपके नामों को उठाकर बुलाते हैं। I pray that you preserve the righteous in the land, Lord. और हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस धरती के जो धर्मी लोगों को आप संभाल के रखिए। Lord, we pray for doors for evangelism to be open, Father. और हम प्रार्थना करते हैं कि आप इंजिलवाद के लिए द्वार को खोलिए। Let my land know you, Father God. Let my land be healed, Father God. और मेरा जो जमीन को आप चंगा कीजिए और मेरा जमीन आपको जानने पाए। We ask all this in Jesus' mighty name. और हम सारे बातों को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Sister Sabina. God bless you. Hallelujah. हम सबीना के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। बहुत अच्छे मैसेज आज प्रभु ने हमारे बीच में भेजा है। हमारा जिम्मेदारी क्या है? हालेलुया। इसी में हम बढ़ते जीने के लिए हम प्रभु का हाथों में समर्पण करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अपना अपना परिवार को संभालो, उनके लिए प्रार्थना करो। अपना जीवन को संभालने के लिए आज परमेश्वर ने हमको मैसेज दिया है। साथ साथ में हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर लोगों के लिए प्रार्थना, बहुतों के लिए इंटरसेक्शन करना, प्रार्थना करना। ऐसा ये फंडामेंटल्स का बीच में हम सोते नहीं रहने के लिए प्रार्थना करते, जागते रहने, प्रार्थना करते रहो। और ये कौन सा वक्त में
ये नाश हमारे ऊपर आएगा ये अपने को मालूम नहीं, इसलिए हम भी जागते रहना और प्रार्थना करते रहना। हम लोग मिलकर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आज हम प्रभु का हाथों में समर्पण करेंगे, छोटा प्रार्थना कर कर हम बंद करेंगे। प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देते, आपका स्तुति आपकी महिमा करता हूं प्रभु जी, हालेलुया। अब तक आपने वचन सुनने के लिए हम लोग को सहायता किया, मदद किया, हर एक जिम्मेदारी हर एक लोग लेने के लिए प्रभु हमारे से और उदासी होके नाश में लोथ का जैसा नाश में नहीं जाने के लिए प्रभु हम लोग इस दिनों में प्रार्थना वाला बनने के लिए, बहुतों के लिए, बहुतों को चुड़ाई के लिए, देश के लिए आप प्रार्थना करने के लिए, ये महामारी के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु अनेक प्रिय लोगों को आप जगाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। ये हमारा जरूरी है, हम जरूर करना, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, उनका उद्धार के लिए प्रभु प्रार्थना करना। यीशु मसीह का लहू का सुरक्षित हर एक परिवार में रहने के लिए प्रभु प्रार्थना करता पिता, हालेलुया। जो जो वचन आज हम लोग को सुना है, बहुत एग्जाम्पल सुनाया प्रभु, हम हालेलुया इसी में हम बने रहने के लिए हमारा क्या, हम परमेश्वर का विरुद्ध में कभी कुड़कुड़ाई वाद नहीं करने के लिए पाप बढ़ गया, इसी कारण से बहुत ही भी तकलीफ देश में हो रहा है प्रभु, आप दया करने के लिए हालेलुया हम लोग को ऊपर करुणा करने के लिए प्रार्थना करता प्रभु। खास करके सबीना फर्नांडो के लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु, परिवार को भी आशीष कर, अनुग्रह कर, हमारा विश्व में आके वचन बताने के लिए प्रभु आपका बेटी को आपने सहायता किया, धन्यवाद करते हैं। बहुतों को इस अंतिम दिन में हालेलुया वचन देकर बलवंत करने के लिए और भी उपयोग करने के लिए मैं प्रार्थना कर, धन्यवाद करने के लिए इसी को भी आपने सहायता किया, मदद किया, गाना आराधना करने के लिए दानियल ब्रदर को कृपा दिया प्रभु, इतना लोगों को आने के लिए, वचन सुनने के लिए आपने सहायता किया, मदद किया, सभी के लिए मैं धन्यवाद करके प्रार्थना कर रहा हूँ। सभी को फिर से एक बार आपके हाथों में, सबके लाहू में समर्पण करके प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना सुनना धन्यवाद यीशु मसीह का नाम है, आमीन। हाथ उठा के हम प्रभु को धन्यवाद बोलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमारा प्रार्थना सुना, धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह की अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे कष्ट और सुना हुआ वचन के अनुसार यीशु मसीह का दोबारा आगमन तक हमेशा होते रहे, आमीन। प्रभु सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, जो वचन सुना है ध्यान से हालेलुया अपना जिंदगी जीने के लिए उत्साहित करो। प्रभु आप लोग का साथ में रहेंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। हेलो अंकल, आमीन। अंकल बोलिए। प्रवीण बोल रहा हूँ अंकल। हाँ बोलो। अंकल मेरी मौसी है ना आईसीयू में है। हेलो हेलो, कौन सा मौसी है? मंगल सुमन। मौसी, मंगल मौसी। मंगल को क्या हो गया? उसका ऑपरेशन हुआ मंगल ना? मौसी, हाँ प्रार्थना हाँ, करें प्रभु जी ऑपरेशन मंगल के मौसी बीच के में लिए ही ना उनको हाँ हाँ उनको बीच मालूम में मालूम अटैक आ गया ऑपरेशन। अच्छा 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 हाँ। अच्छा तो अभी अटैक है। सीरियस है, सब प्रार्थना करना। प्रार्थना करेगा प्रवीण ब्रदर का मौसी के लिए भी प्रार्थना करना सब लोग। सशेला का छोटी बहन है, अरे उसका पैल्स का ऑपरेशन किया बीच में और उसको बीच में अटैक आया, बोला वो सीरियस में हॉस्पिटल में। प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, मंगल के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आपका बेटी को संभालो, सुरेश रख, उसको अटैक हो गया, आईसीयू में रखा है, लेकिन प्रभु उधर से जिंदा होकर बाहर आने के लिए प्रभु आपका नाम का महिमा के लिए उनको जिंदा रखने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आप जरूर मेरा प्रार्थना सुना, आप जरूर वैसा करेगा, मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह का नाम पे, आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप लोग प्रार्थना करिए और प्रार्थना में रहिए, प्रभु आपको सबको सहायता करेगा, प्रेज द लॉर्ड। सबीना थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। नहीं सुन जाए। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभा सिस्टर प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द Praise लॉर्ड। the Lord. सबको धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड टू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord, Prabhu.
सबका प्रेज लॉर्ड, सबका प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कल 10 बजे संडे का वर्शिप रहेंगे, सब लोग आइए। ओके, गुड नाइट टू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। Night. Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। Vivek, praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड आंटी। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। मम्मी और सब लोग कैसे हैं? हाँ सब ठीक है। ഓഫീസ് മാസ്ക് പിന്നെ വേറെ ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ. പെയിന്റ്